جی ناظرین، آپ ایک دفعہ پھر مختصراً آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی جو کہ 14th نیشنل اسمبلی کا ہے یہ آج، اور اس کا پہلا سیشن، پہلا دن اس سیشن کا، اور تمام جو نو منتخب اراکین ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ملک سے وفادار رہنے کا، ملک سے لائل رہنے کا، اور اس کے بعد اس وقت جو تقریب یہ ابھی جاری ہے اور تمام نو منتخب قومی اسمبلی اراکین دستخط کر رہے ہیں، اور جس کے بعد فردر جو بھی ہوگا کل، جس طرح سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بتایا ہے کہ کل اسپیکر پیر کے دن، بلکہ معذرت کے ساتھ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور کل تک اس کے لیے ہے کہ نامینیشن پیپرز فائل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً یہاں پہ یہ خصوصی ٹرانسمیشن CNBC کی جو ابھی جاری ہے، اور یہاں پہ جس مہمان کا اضافہ ہوا ہے اس کا تعارف میں کرا دیتی ہوں، ان کے سینئر رہنما ہے وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ اس پینل کو انفیکٹ جوائن کرنے کا۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی جو باتیں ہو رہی تھی، آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے، ایک لمبا ایکسپیرینس رہا ہے نیشنل اسمبلی میں، آج آپ اس میں نہیں ہیں، تھوڑی سی اگر ہم آپ سے لائٹر نوٹ پہ فیلنگس کو شیئر کر لیں جس کو علی زیدی صاحب مس کر رہے ہیں۔ ویسے یہ اگر لائٹر نوٹ ہے تو مجھے آپ کا ہیوی نوٹ اس کے بعد مجھے بتائیں پہلا دن آپ کا کیسا تھا ویسے قومی اسمبلی میں جب آپ بحیثیت مدر وہاں پر گئے تھے؟ ہاں، میں ابھی پہلی دفعہ الیکٹ ہوا تھا نیشنل اسمبلی کے لیے سال پہلے، اور میرے لیے اتنا کچھ نیا نہیں تھا کیونکہ میں نے سندھ اسمبلی بھی 2-3 دفعہ گزاری ہے، اور وہاں عجیب چیز یہ تھی صرف میرے نزدیک، گزاری آپ ایسے کریں جیسے برداشت کی ہے، جیسے آپ کو گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے، آپ تو باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، کبھی گراؤنڈ میں آئے گزاری ہے آپ کو جیلی، اس میں جیل بھی کھاتے ہیں 3 سال، اس لیے بول رہا ہوں گزاری ہے۔ اگر نیشنل اسمبلی کو دیکھتے ہیں ہم تو ظاہر ہے مختلف صوبوں سے بڑے بڑے لوگ وہاں آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جن کو آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں پاس میں، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی سوچ سامنے آئی، مختلف جماعتوں کے لیڈران سے ملاقات ہوئی، تو ایک اچھا ایکسپیرینس تھا۔ ہوتے ہیں جن کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ رکن کی حیثیت سے، ان میں ایک انتھوزیزم زیادہ ہوتا ہے، ان میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹوورڈ دا ورک یا ٹوورڈ دا سروسز یہ فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ تعداد کافی زیادہ ہے۔ نیشنل اسمبلی میں میں جس کو پولیٹیکل ورکر کہتا ہوں وہ بڑے کم تعداد ہے ان کی، وہاں پالیٹیشینز ہیں، جو ہمارا سسٹم ہے، ہمارا کلچر ہے جو سیاسی، اس میں پنپے ہوئے لوگ ہیں، اس میں پروان چڑھے ہوئے لوگ۔ ایک سیاسی ورکر ہوتا ہے اور وہ جب اسمبلی میں جاتا ہے تو اس کے اندر جو آپ بات کر رہی ہو نا جذبے کی، وہ نظر آتا ہے۔ اس دفعہ تو کافی تعداد کے بڑے لوگ ہیں جو لوٹ گیا، نون لیگ میں بھی اس دفعہ کافی اپنے پولیٹیکل ورکر، اس بار آپ کو شاید نظر آتا ہو آئے گا، مگر ماضی میں جو میں نے دیکھا ہے اس میں وہ جذبہ جو ایک سیاسی کارکن کا ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے الیکٹ ہوا ہوں، یہاں کا کام کروں گا اور لوگوں کے مسائل حل کروں گا، وہ جذبہ میں نے نہیں دیکھا۔ چلے وقت سے بحث نیکسٹ آتا ہے، پھر کنکریٹ پالیٹکس پہ آ جاتی ہوں۔ PTI آپ کے سامنے موجود ہے۔ نوین کمار صاحب نے کہا، آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا جب لیڈر آف دا اپوزیشن کے حوالے سے بات آئی، انہوں نے کہا کہ جی اگر عمران خان صاحب میچورٹی کا مظاہرہ کرتے تو شاید آج وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے، یعنی MQM ان کو سپورٹ کر دیتی۔ کامنٹ؟ لیکن جو ماضی میں ہوا، ایک میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا، وہ کوئی ایسی اچھی چیز نہیں ہوئی تھی، چاہے وہ دونوں طرف سے ہو یا ایک طرف سے ہو۔ آگے جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اسی لیے تو ساری چیزوں کو بھلا کے آگے جانا چاہیے، اور ابھی وقت ہے، ابھی اس جگہ پہنچے نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر چنا جا سکے، ٹائم لگے گا، ہمیں آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے۔ نہیں، کس کو ٹائم لگے گا اپوزیشن لیڈر؟ ابھی وقت نہیں ہے، کس کے لیے؟ ظاہر نمبرز دیکھیں گے، ابھی وہ پروسیس MQM ایک پوزیشن میں ہمیشہ رہی ہے نا کہ وہ حکومت بنا دے یا حکومت گرا دے، اب بنا دے اور کس کو بنا دے؟ اگر سمجھنے والا سمجھے گا، ہمارے جو ووٹس ہیں جہاں بھی جائیں گے وہ اپوزیشن لیڈر بنے گا۔ ایگزیکٹلی وہی تو میں بات کر رہی ہوں، دونوں لیڈران نہیں، لیکن اب تو میچورٹی آپ کو دکھانی ہے نا کہ کون سی آگے بڑھے، پھر آپ آگے بڑھے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، مگر ہم بھی اس 6 دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیٹ دیم، ہم لوگوں کا اگر کوئی ایسا بنتا ہے
कोई बातचीत आगे बढ़ती है तो ही किसी नतीजे को आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि तहरीक साहब की जानिब से कोई अली रजी साहब आप लोग मैं इससे थोड़ी हट के एक बात करूंगा। वो कहते हैं ना सब अकलमंद है, सबको सारा काफी है। सोच अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सोच बड़ा मजे का, अच्छी सोच से अच्छे अल्फाज बनते हैं, अच्छे अल्फाज से अच्छा अमल बनता है, अच्छे अमल से अच्छा किरदार बनता है, और अच्छे किरदार से इंसान की पहचान होती है। जो असेंबली में जाके लोग बैठते हैं ना, 200, 250, 300 लोग, ये 20 करोड़ आवाम के लिए रोल मॉडल का किरदार इनको अदा करना होता है। देखो एक आदमी जैसे मैं 200 बार में 2 लाख आदमी ने वोट दिया, टोटल अगर आप वोट काउंट करें ना, और 4 लाख के ऊपर वोटर है, 7.5-8 लाख की पॉपुलेशन है, तो जो आदमी 8 लाख आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने कम से कम उन 8 लाख लोगों के लिए तो रोल मॉडल बनना है। क्यों वैसी भाई? मैं ठीक है, बिल्कुल ऐसा है, इज राइट। तो रोल मॉडल देखिए ना, अब हमने किया है पाकिस्तान में, जैसे उन्होंने कहा कि नहीं पॉलिटिकल वर्कर नहीं जाता हुए, आप पाकिस्तान में किसी अच्छे खानदान वाले को नहीं पॉलिटिक्स में चला जाए, आप पूरी असेंबली में उठा के देख लें, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो नहीं यार पॉलिटिशियन क्यों जाना है, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़े हो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बाहर चले जाओ, फिल्म मेकर बन जाओ। लीडर के सिलेक्शन इलेक्शन से वापस आ गए। मैं ऑपोजिशन लीडर की सिलेक्ट, मैंने आपको बहुत बड़ा इशारा दे दिया। इशारे ना देना, देखिए ये थोड़ा आगे बढ़ेगी, और वो जो हैदर आगे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये जो तलखी, ये जो रंजिश है, वो कम हो जाए, चीजों को सेटल। हम वहाँ अब आज आए हैं गलतियां कर करके कि हमें मेच्योरिटी का वो करना चाहिए, और हमें सब मिल के जो अब इशू सामने है, नवाज शरीफ साहब के सामने कांटों की सेज है, ये फूलों की सेज नहीं है। अगर केपीके को देखते हैं हम, इनके आगे भी कांटों की सेज है। हमारे सामने जो इश्यूज हैं, तालिबान, ड्रोन, इकोनॉमी, लोड शेडिंग, एनर्जी क्राइसिस और बेरोजगारी, अगर हम आज भी वही नंबर स्कोरिंग में लगे रहेंगे असेंबली के अंदर, तो फिर अल्लाह हाफिज है इस मुल्क का। आज जो भी जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको मिलकर बैठना पड़ेगा, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो निसार साहब हों, मियाँ साहब हों, चाहे वो फारूक सत्तार साहब हों। मैं इसका जवाब दूंगी अली जैदी से भी और एहतशाम साहब भी नजर सामने से मुख्तसर से देख के बाद, लेकिन वसीम मुफ्ती साहब, यहाँ पर क्या हम ये बात कहें कि जब ये ऑपोजिशन सामने आएगी तो वो ये कहेगी कि जिन चैलेंजेस का आप आज जिक्र कर रहे हैं वो उनको विरासत में आप ही लोगों ने दिए इस 5 साल की हुकूमत में? जवाब देती है, इसको भी भूलना पड़ेगा कि विरासत में किसको किसने क्या दिया। ऐसा नहीं है, 65 सालों में सबने आप तो हो ही नहीं, आप तो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और शॉर्ट ब्रेक लेके जब वापस आएंगे, जब बात हो रही है कि जिन चैलेंजेस को आज वसीम मुफ्ती साहब गिनवा रहे हैं कि ये चैलेंजेस फेस कर रही है इस वक्त नेशन, और इन चैलेंजेस को से सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए मिल बैठना पड़ेगा। क्या वैसे ही मिल बैठना पड़ेगा जैसे 5 साल ये मिलके बैठे थे, या वाकई इस वक्त देखना यह है कि कौन से इश्यूज पे मिल बैठ के एक प्रोग्रेसिव सियासत हो सकती है? मुख्तसर साहब एक बात, ये राज का नहीं पुराना। हर तरंग पैक से मिले आईफा अवार्ड जाने का मौका। अपने जोड़ीदार के साथ आईफा अवार्ड मकाम में शिरकत के लिए पैक पर दर्ज कोड शिनाख्ती कार्ड नंबर के साथ 1001 पर SMS करें और पैक संभाल कर रखें। एंट्रीज भेजो बेशुमार, आईफा के लिए हो जाओ तैयार। Today's transmission is brought to you by क्या आप बेस टेंशन का शिकार तो नहीं? वेलकम बैक। और यहाँ पे ये स्पेशल ट्रांसमिशन CNBC के प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जो मकसद है वो आपके सामने है। कौमी असेंबली जो 14 कौमी असेंबली का जो सेशन है आज, उसका पहला इजलास जिसमें तकरीबन अहलबरदारी हुई, और वो अभी जारी है। अहलबरदारी के बाद जो दीगर प्रोसेस होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो उस पर काम हुआ। अली जैदी साहब जरा मुझे बताएगा, ये जो मिल बैठने की बातें कर रहे हैं वैसे मुख्तर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, जो पॉलिटिकली बड़ी मेच्योर बातें कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आप इस पे कितने कायम है कि जी अब आगे बढ़ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं शायद हाथ में मिलाना पड़ ही जाए? लीडरशिप का फैसला होगा,
दिस इज मैं कह रहा था डिसीजन पार्टी का कभी हाँ राय मैं जरूर दूंगा, लेकिन मैं मीडिया पे नहीं दूंगा, जो राय होगी इंटरनल होगी। और इसी तरह इनकी भी लीडरशिप का और इनकी भी जो कमेटीज है, राब्ता कमेटी है, जो भी इनकी लीडरशिप है उसका फैसला होगा कि इन्होंने किसको चूज करना है। जरूर खान साहब एक ऑपोजिशन लीडर के लिए फाइल करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद तो जो ये है और पीपल्स पार्टी है और एक दो छोटी जमातें, तो उनका फैसला ये होता है कि जब वो फाइल करेंगे फिर वो लोगों को कन्विंस भी उनको करना है, मतलब वो कैनवसिंग वही ये कहेंगे कि जी हम आपके साथ हैं, हमें वोट करें। सियासी तरीका है, कि आपने फाइल कर दिया जाए जी, जिसको देना दे दे, नहीं देना सियासत में वसीम हो सकता है कुछ भी, मतलब कोई भी चीज सामने आ सकती है। आपने तो अपने आप को सामने रखा है ना, आगे जाना है। नादिया ये जब जिस तरह ये अपने वोटर्स के साथ इस वक्त बाउंड लाइन कराची में जो हुआ, इनको लगता है कि एमकेएम से बात भी करेंगे, वो नारा देखें। अब इनको भी आगे जाना होगा। लीडर वो नहीं होता जो हर कारकुन की मर्जी के मुताबिक से चले। लीडर को चुना जाता है कि वो मुश्किल फैसले करे, इवन अगर उसके कारकुन को उस वक्त वो नहीं समझ आए। तो मेरे ख्याल से पीटीआई को अब एक पार्लियामेंट्री रोल प्ले करना है और उसमें हर एक से बात करनी होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक से मिलना होगा या उसके मौके पे आना होगा, लेकिन बात करने का अमल जो है, ये कहना हमने बात ही नहीं की, जैसे बड़े डर रहे हैं अपने कारकुन से कि बात भी करेंगे, ये गलत है। इस चीज से वैसे निकलना चाहिए सबको निकलना चाहिए। अब हमारे सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, इससे बढ़ के हैं। देखिए एक आखिरी बात इस पर सिर्फ ये कह दूं अली साहब कि देखें, आपने ये नहीं जाके अपने कारकुन वोटर या अपने ब्लॉगर को कहना कि मैं अब जो है तायीद करता हूं वसीम साहब के मौक़िफ़ की, लेकिन आपने उसे ये जरूर एजुकेट करना है कि अगर ये अच्छे हैं या बुरे हैं, लेट से हमें ये बुरे भी लगते हैं, लेकिन हमें अपने उसूलों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मौक़िफ़ को आगे लाने के लिए अगर किसी से बात करनी पड़ती है तो उसमें कोई शैलजा की तरह जाना है। खुशी होता साहब, अपोजिशन का आपने इस वक्त फैसला क्यों किया? अपोजिशन में बैठने में 5 साल आपने पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे, अभी भी उनकी तरफ से आपको एक ऑफर थी, इमाम मलिक साहब की मुलाकात भी हुई, क्यों लिया ये डिसीजन? आपने समझा कि आपने लूज किया है बिकॉज ऑफ पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस इन लास्ट 5 ईयर्स? देखिए बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है, कि हमने ऑप्ट किया कि हम ऑपोजिशन में बैठे। माजी के जो 5 साल थे उसमें जो सिनेरियो बना हुआ था सिंध का खासतौर पर, वो मुख्तलिफ था आज से। आज सेंटर में PMLN है, पिछले 5 सालों में पीपल्स पार्टी थी ऑल इन ऑल, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखते हुए हमने जो डैमेजेस हैं 5 साल जो हुए हैं इस शहर में खास तौर पे और सूबे सिंध में, हमने उसमें कमी लाने की कोशिश की है। अगर हम इनके साथ नहीं होते, मैंने कहा वजूहत बहुत हैं, लंबी कहानी हो सकती है ये। पता नहीं इजाफा होता तो क्या होता है वसीम साहब, मैं भी बहुत बुरा हाल होता। तो खैर उसको सामने रखते हुए हमने ये फैसला किया। आज हम फैसला कर रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, और वो अपोजिशन कोई भी नहीं कर सकता जो माजी में इस मुल्क में लोगों ने देखी है। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि आगे हमारे सामने चैलेंजेस हैं, इनके सामने भी हैं और नून के सामने भी हैं। जब तक अगर हम यही स्कोरिंग करते रहे तो फिर आने वाले इलेक्शन में मैं नहीं समझता कि जितना मैंडेट मिला है जिस जमात को वो मिले। मैं एक सेंटेंस आपको कहना चाहूंगा, आपने मुझसे सवाल एक पूछा था, मैं जो भी ऑपोजिशन में पार्टीज हैं नहीं मेरे पास ये तो मैं अपना कुछ देख रहा हूँ, जवाब नहीं है। मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ कि उनको खुद भी देखना होगा कि स्टैचर कौन कर सकता है, मतलब हु कैन एक्चुअली फुलफिल दिस रोल। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि चलो आप अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, आप एज ए कैंडिडेट सामने आते हैं, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि जी ये चीजें डील नहीं होगी किसी के साथ। अपोजिशन में शैला की तरफ जो बात करें, शैला सिविल असेंबली का एहसास भी हो गया, आप लोगों की सिलेक्शन भी हो गया, मतलब आपका इलेक्शन बोले सिलेक्शन स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हो सिलेक्शन नहीं। एमकेएम लास्ट टाइम 5 साल आपके साथ थी, और इस दफा अगर मैं एमकेएम के जो वकीलों के साथ बैठे हैं उनसे बात करूं तो कहते हैं कि जी इस दफा थोड़े से डायनामिक सेम है, आप लोग कौमी असेंबली में नहीं है, तो जो डैमेजेस हुए हैं पिछले 5 साल में उनको भी कवर करना है। क्या वजूहत देखते हैं कि आज एमकेएम आपके साथ नहीं है और अपोजिशन पे बैठी है? फैसला है, जो भी वजूहत होंगी वो खुद देंगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो अब तक की गुफ्तगू से मैंने एनालाइज किया वो ये है कि परसों तक जो है वो एमकेएम और पीटीआई में कोई बातचीत नहीं थी, क्योंकि पीटीआई ने सिंध में एमकेएम को वोट नहीं डाला।
जहां तक इस बात की है कि पीटीआई को अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो लोगों से बात करे, वो पीटीआई उससे पहले कर चुकी है, वरना वो शेख रशीद के पास क्यों जाते, शेख रशीद के लिए उनके क्या अल्फाज थे इलेक्शन से पहले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब जब हम आगे बात कर रहे हैं तो हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो पीटीआई का तो नहीं, मतलब एएनपी का, पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का एक वाज़ेह मौक़िफ़ अगेंस्ट द तालिबान है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वो एक जर्नल जो मुल्क में टेररिज्म है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि ये दोनों पार्टी क्या इस मौक़िफ़ पे क्या फैसला करके वो होती है। तो ये पूरा टोटल डिसीजन जो है वो एमक्यूएम का है कि वो पीटीआई के इस स्टैंड को मानती है जो एमक्यूएम का है, या एमक्यूएम उसको मान लेती है जो पीटीआई का है। तो ये एक फैसला है जो मैं समझती हूँ कि इतनी जल्दी और इतना आसान अच्छा, नहीं इनका फैसला क्या होगा ये तो बता देंगे वसीम अख्तर साहब खुद भी, लेकिन खुशीशा साहब ने कहा कि अभी हमने ये फैसला नहीं किया है कि इसके लिए वज़ीर आज़म के लिए हम नवाज शरीफ को वोट करें या उनको वोट ना करें। मतलब आप लोग क्या प्लान किए, ये बैठे हैं कि आप लोग इस दफा कुछ न कुछ पे बैक करेंगे इस पे जो 5 साल आप लोगों के साथ नवाज शरीफ या नून लीग ने किया, कोई चांसेस है कि आप लोग उसी को वोट देंगे और अपना कोई अलग से कैंडिडेट सामने नहीं लेकर आए? मैं जो जवाब दे रही हूँ उसको 2 तरीके से लीजिएगा। एक उसको जो एहतशाम साहब ने भी कहा था, देखिए मैं ये समझती हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट में जो कि एक बड़े मुश्किल पीरियड में आई हो, उससे वजीर खजाना का ये कह के छोड़ना कि खलास है कि उस हुकूमत का उसको 5 साल चलाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। फिर इसी तरह मुख्तलिफ खबरों पे एक एक लाइन की खबर पर मुख्तलिफ केसेस बनना और कमीशन बैठना, जैसे मंसूर एजाज, जैसे हज, जैसे स्टील, अजब करप्शन की गजब कहानी पे मुकदमे बनाए गए और कमीशन बना। तो मैं एक बात ये कहना चाह रही थी कि एहतशाम साहब ने जो इससे पहले कहा था इंटरनेशनल और नेशनल, कि एक खबर न्यूयॉर्क टाइम में छपी कि 1 अरब रियाल सऊदी अरब ने पीएमएलएन को दिए इलेक्शन के लिए, लेकिन इस पे और ये जो इतने धमाके हुए इलेक्शन से पहले और इतने खुली धमकी थी तालिबान की और वो एक्सेप्ट कर रहे थे, वसीम साहब गवाह हैं कि इनके यहाँ 2 धमाके हुए और टीटीपी ने ये एक्सेप्ट किया कि हमने किए हैं। तो इस पे जब इंटरनेशनली और नेशनली फोर्सेस जो थी और सोमोटोज भी हुए और कुछ नहीं हुआ, इदारे बोल सकते थे वो नहीं बोले, और जो आरोप का रवैया था उसकी आई भी कहेगी, एनसीएम भी कहेगी, तो ये सारी बातें तो ये उसका जवाब है जो एहतशाम साहब ने कहा था नेशनली और इंटरनेशनली। हमारा ये कहना है कि हमारे साथ, हाँ मेरा कहना नादिया, मेरा कहना यह है कि हमारे साथ कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं हुई। मेमो केस पे नवाज शरीफ साहब पूरा फुल सूट वूट पहन के कोट वोट लगा के वकील बन के गए, प्लस क्या हुआ माजी में वो भी सबको मालूम है। हमने कोई अपोजिशन फ्रेंडली नहीं ली है। ठीक है चला आपके अयाज अमीर साहब इनफैक्ट कराची से हमारे साथ मौजूद है और उनको भी हम इस पैनल में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज अमीर साहब। अच्छा, एक बात, मुझे कहीं जाना है, मैंने 12 बजे का टाइम दिया था, एसएमसी जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा पाया है उसने, तो मैं उसकी पहली वादा करने वाली थी, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इजाजत दे दे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच शैला, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने का। अयाज अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयाज अमीर साहब, थोड़ा सा आपका एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ होने जा रहा है जिस तरह से असेंबली बन रही है। पहले हम थोड़ी सी अगर इस पर बात कर लें कि क्या ऑपोजिशन लीडर कौन हो सकेगा। एमक्यूएम राइट नाउ इस पोजीशन में है कि वो ऑपोजिशन लीडर का जो इंतखाब होने जा रहा है उसमें एक अहम रोल प्ले कर रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं एमक्यूएम का झुकाव, क्या वाकई तहरीक इंसाफ की तरफ हो जाएगा इमरान खान को ऑपोजिशन लीडर बनाने की तरफ, या फिर खुशीशा साहब जो कि ऑपोजिशन में जबकि सिंध में भी है, किस तरह से देख रहे हैं ऑपोजिशन लीडर के लिए आप? ऐसा अभी तो नहीं पता। ये यहाँ पे मैंने अभी देखे थे वसीम अख्तर साहब, वो इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकेंगे। मेरी तो जो लगता है कि अभी तक तो इन 2 जमातों में कोई कांटेक्ट नहीं है, और क्या इनमें कोई बात बन पाएगी या किस तरीके से बातचीत को शुरू नो आइडिया, ये देखना होगा। आखिरी साहब, मुझे ये लग रहा है जो वसीम अख्तर साहब ने यहाँ पे बात भी की और अभी उनसे दोबारा भी पूछ लेते हैं कि वो ओपन है इस वक्त और वो ये चाह रहे हैं, उनकी आई थिंक एमक्यूएम की ये इंटेंशन है कि जी पीटीआई जो ये एक अजीब सी एक टग ऑफ वॉर इनके दरमियान शुरू हो गई है, इसको थोड़ा सा कूल डाउन भी करे, इसको खत्म भी करे, आगे भी बढ़े, तो क्या हम इस मेच्योरिटी की तरीके इंसाफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी अब आएगी और मामलों को ठंडा करेगी और फिर आगे चलने की बात करेगी?
देखिए तक तो इन दोनों जमातों में कराची के हवाले से बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन माजी की तलखी से इन दोनों जमातों को अगर थोड़ा सा ये निकल आए तो इनके लिए बेहतर होगा या नहीं बेहतर होगा, कराची के लिए बहुत बेहतर होगा। कराची के मामलात आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं और इसमें कुछ दानिशमंदी और स्टेट्समैनशिप अगर पीटीआई दिखाए, अगर एमक्यूएम दिखाए, अगर एमक्यूएम में वाकई कुछ तब्दीली आ सकती है, पुराने रवैये जो हैं मुस्तकबिल में अब वो चल नहीं सकेंगे, अभी वो दे आर नो लॉन्गर फीजिबल इन कराची, थोड़ा सा उसमें अगर तब्दीली आ जाए और पीटीआई भी वो जो माजी की यादों से वाबस्ता उसका एटीट्यूड और देखने का तरीका था एमक्यूएम के बारे में, अगर उसमें तब्दीली आ सकती है कराची के लिए ये बहुत ही एक खुशाइंद बात होगी। और कराची जब तक ना सुधरे, कराची में अमन ना आए, तो ये हम समझें कि पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा, ये नामुमकिन चीज। ठीक है, आपको बड़ी तब्दीली भी हम नहीं देखेंगे। हैदर थोड़ा सा अगर आप इसमें शामिल करें, क्योंकि आप बहरहाल लकीली हमारे पास दोनों जो इस मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, दे ऑल बोथ फ्रॉम कराची। मेरी भी बात सुन ले। नहीं यार जी एहतिशाम सर, ये ऐसा क्यों है? जब मुझसे कुछ पूछती हैं तभी आपको कुछ कहना होता है। और मेरी आई भी नहीं नादिया, मेरे पास आ रहे हैं, आपके पास ही आए से बात कर लेती हूँ। जी देखें, अयाज के साथ बड़ी जो है कड़ी नजर है इन सारी चीजों में। नून का भी इनका बैकग्राउंड है, इन्होंने जो तज्जिया किया कराची की सियासत के हवाले से आई थिंक बिल्कुल दुरुस्त है। और उन्होंने एक अच्छी बात की एमक्यूएम की। देखें एमक्यूएम को मुझे लगता है आज अमीर साहब जैसे लोग जिनको एक थोड़ा तनकीद भी करते रहे वो एमक्यूएम पे, लेकिन सब चाहेंगे कि एमक्यूएम थोड़ा अपने आप को रीइन्वेंट करे और बदलती हुई सियासत और बदलते हुए हालात के साथ एमक्यूएम आगे बढ़े, क्योंकि एमक्यूएम एक हकीकत ही नहीं है, एमक्यूएम एक मतलब मेजर प्लेयर ही नहीं है। एमक्यूएम हैज बीन द पार्टी इन कराची फॉर 30 years, लेकिन हम सब चाहेंगे कि अब बदलती हुई सियासत के साथ एमक्यूएम भी आगे बढ़े। और ये महाजराई की सियासत, मैं इसमें सिर्फ एमक्यूएम को नहीं इल्जाम दे रहा, सबको दे रहा हूं। ये अब जो है ना, चाहे कोई भी किस तरह हो, मैं डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एमक्यूएम पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अगले 5 साल नादिया इसी तरह रोज 5 लोग 10 लोग 15 लोग मरते रहे तो मेरे ख्याल से अगला इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। और ये एमक्यूएम को समझना चाहिए, बेशक के वो जाहिर है मुलव्वस हो ना हो, ये नहीं मैं कह रहा, जिम्मेदारी आएगी इन पे। ये यहाँ मैंडेट लेते हैं, या तो अगर कुछ नहीं कर सकते, वसीम साहब बोलेंगे हम क्या करें, हमारी होम मिनिस्ट्री, तो फिर आवाज उठाएं, बताएं क्या वजह है, कौन किसको मारे, एक्सपोज करें सारी चीज को। कराची में लोग क्यों मरते रहते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, इस पे एमक्यूएम को बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ लेना होगा और एक सोल्यूशन बन के सामने आना होगा, वरना यहाँ पे जैदी साहब कहेंगे हमारे पास सोल्यूशन। सही है। एहतिशाम सर, अब आप मुझे ये बता दीजिएगा कि अब जो एमक्यूएम में अभी जो तमाम रिवैम्प हुआ है, जिस तरह से आजमी साहब ने कहा कि पुराने रवैये तब्दील करने होंगे, तो अगर ये रिवैम्प इसी की निशानदेही है कि जी पुराने रवैये तब्दील हो रहे, हैदर भाई ने अगले 5 साल के इलेक्शन की बात की, लेकिन हम तो यहाँ पर एक नया इलेक्शन जो कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन हो जाते हैं उस पर भी एमक्यूएम को जो अपना वोट बैंक है वो दोबारा से इंटैक्ट करना होगा, उसमें कितना वर्कआउट इसका करना होगा, उस पर भी लागू होती है। देखिए इसमें राजिया अब एक हमें मानना पड़ेगा कि अब ग्राउंड रूल्स पॉलिटिक्स के बड़ी तेजी से जो है ना वो तब्दील हुए, खासतौर पर सिंध और कराची में और बाकी सिंध के शहरों में हुए। हमें मानना पड़ेगा एक वक्त था, बल्कि आज भी हम देख रहे हैं कि हमेशा लोग एक ही बात कहते हैं कि जी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हम करेंगे, लेकिन हमने देखा ऐसा नहीं होता था। नजरियात उसूलों की पॉलिटिक्स कभी नहीं हुई, गिव एंड टेक, एक दूसरे को अकोमोडेट करने की बात। अब पर्टिकुलरली आपके सवाल के जवाब में तो ये बात बिल्कुल तय है कि कराची में आप देख लें, एक वक्त था कि एमक्यूएम और पीटीआई एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा हो गए थे। आपको याद है पीटीआई के सरबराह ने साहब भाई के खिलाफ केस करने की बात की थी, इवन वो लंदन में चले गए थे। फिर हालात ऐसे बदले कि फिर हमने देखा कि एक दूसरे की अकोमोडेशन गिव एंड टेक की सूरत हाल हुई। फिर आपने देखा कि कराची में एक बहुत बड़ा जलसा पीटीआई ने किया और सबको पता है कि एमक्यूएम ने बड़ा उनको फैसिलिटेट किया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसने करवाया नहीं करवाया, लेकिन एक चीज है कि आपस में ताल्लुकात उनके बेहतर हुए थे। अब हम देख रहे हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि अब सिचुएशन जो है ना एकदम से रिवर्स हो गई और फिर वही मुखालफाना जज्बा। अल्लाह करे कि नादिया इलेक्शन का वक्त खत्म हो गया, वो सूरत हाल ना हो। बाकी अब एमक्यूएम में एक बहुत बड़ा फिनोमेना मैं देख रहा हूं। अभी आप देख लें, एक शख्स अजमल पहाड़ी था, उसके ऊपर 100 मुकदमे थे और मैं वसीम अख्तर साहब के सामने बात कहूंगा कि उन्होंने उसको लोग कहते थे कि 100 कत्ल किया, उनको ओन किया जाता था। लेकिन आज देख ले तब्दीली एमक्यूएम में, जिसको मैं जाती तौर पर बहुत अच्छा समझता हूं। देखिए गलतियों से सबको सीखना चाहिए, सब
बहुत पार्टियों ने गलती की इस मुल्क में, हम कहें कि एमक्यूएम ने किया, किसी और ने की, ये जाती होगी। अब ये जो तकरीर का अमल एमक्यूएम के अंदर शुरू हो गया, ठीक है, ये तकरीर का अमल जो नादिया शुरू हो गया, मेरा ख्याल है एमक्यूएम में ये बहुत अच्छा है। मेन धारे में वो अगर आ रहे हैं, हमें सबको वेलकम करना चाहिए। वो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, बाकी को भी ऐसे ही सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की कि गलतियों से सीखना चाहिए। जो रिवैम्प का जो तमाम का प्रोसेस है, जो विद इन द एमक्यूएम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, मेरे ख्याल है उसकी तरह पहला कदम है। अयाज़मी साहब से मैं इस पर जरूर उनका तजिया लूंगी, जिससे से उन्होंने बात की है कि पुराने रवैये को तब्दील होना चाहिए। तो एमक्यूएम की जो रिवैम्प है, जो चेंजेस है, उसको वो कितना पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन उससे कबल एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपसे शेयर करते चले कि पंजाब असेंबली का जो आज इजलास हुआ था, वो पीर की सुबह 11 बजे तक उसको मुलतवी कर दिया गया है। आज के इजलास में जो तकरीब हलफबरदारी भी हुई, उसमें 322 अरकान पंजाब असेंबली ने उसमें बाकायदा तौर पर हलफ उठाया। और उसके बाद ये इजलास कुछ देर जारी रहने के बाद जो इत्तलात हमें इस वक्त ताज़ा तरीन मौसूल हुई है, उसके मुताबिक पीर की सुबह तक ये मुलतवी कर दिया गया है आज का पंजाब असेंबली का इजलास। अयाज मीर साहब, जरा आप इसमें रोशनी डालिएगा, जो आपने बात की कि जी पुराने रवैये तब्दील करने होंगे, और स्पेशली कैटेगोरिकली आपने कराची के सिनेरियो को, कराची की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये बात की है। हमने पिछले दिनों देखा कि अल्ताफ हुसैन साहब मुत्तहिदा कौमी उम्मत के जो कायद हैं, उन्होंने भी काफी रिजर्वेशन का इज़हार किया। उनकी पार्टी में बड़ा रिवैम्प हुआ, उन्होंने कहा जी हमें बड़ी शिकायतें मौसूल हुई थी, और फिर उन्होंने रवैयों पर भी बड़ी बात की, लोगों को उनसे शिकायत किया कि जो मुंतखब अरकान है उनके रवैये कुछ बेहतर होने चाहिए, उनके रवैये इस तरह से होने चाहिए। इस तमाम पर रिवैम्प को आप कितना पॉजिटिव देखते हैं और फ्यूचर में कितना आप उसको बेहतर देखते हैं? ऐसे हमने देखना है अब नून लीग की हुकूमत परफॉर्मेंस क्या करती है, डिलीवर क्या करती है। तो हमने देखना है कि एमक्यूएम जो है एक्चुअली डिलीवर क्या करती है। वो रोना धोना तो हो गया कि हमसे ये हुआ, एटीट्यूड खराब थे, सेक्टर कमांडर्स कई चेंज हो गए। लेकिन अगर ये दो जमातें एक चीज कर सकें कि नून लीग सेंटर में है, वो जाने अपना काम जाने, कॉन्सेंट्रेट अगर कराची पे करें और कराची की तकदीर को बदलें, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान जो है उसको वो एक किक स्टार्ट मिलेगी, उसको एक पुश और इम्पटस मिलेगा जिसकी जरूरत है। ये सबसे बड़ा शहर है, कॉमर्स, इंडस्ट्री, वाइटैलिटी, डायनामिज्म का ये शहर है। हमारे जो पंजाब के शहर हैं वो तो इससे बिल्कुल वो परोकियल से लगते हैं। ये शहर की जब वो जो पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी इसकी रोशनियां वापस नहीं आएंगी, तो हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन या इकोनॉमिक एडवांसमेंट भी हम पाकिस्तान में नहीं देख सकते। दोनों की आदतों को माजी की तलखियों से निकल के स्टेट्समैनशिप अपना के, कराची इतना बड़ा केक है कि उसमें हर एक आदमी, लियारी के जो बलोच हैं जिनको हम तोहमतें दे सकते हैं, उनके एटीट्यूड्स में भी तब्दीली आने की जरूरत है, वो भी यहां खप सकते हैं। एमक्यूएम जो बड़ी जमात है, जिसको किसी वायलेंस या जबर की जरूरत नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए, वो भी, और पीटीआई ये न्यू फोर्स जो है, जो मिडिल क्लास को लेकर आई है, जो क्लिफ्टन और डिफेंस को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लेके आई है पहली बार इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद, ये सब कुछ कराची में मुमकिन हो सकता है अगर पीटीआई और एमक्यूएम, बिगिनिंग विद द एमक्यूएम, अगर तदब्बुर से और स्टेट्समैनशिप से काम। अच्छा, एमक्यूएम के रोल पे सीमत साहब से बात करूंगी। एक आपका ओपिनियन आज जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी ये तमाम चीजें हैं, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो नून लीग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा और कितना इन्फ्लुएंस होगा, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स कराची लॉ एंड ऑर्डर और उसके सूरत हाल को सही करने में? अयाज मीर साहब, ये मुझसे जी बिल्कुल नहीं, देखिए वो जो है कर सकते हैं, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आती है। कराची के जो अकाबरीन हैं, जो मेन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है। और इसमें सबसे बड़ी हम रिवैम्पिंग तो कह रहे हैं, एमक्यूएम करें, पीपल्स पार्टी जो है ये तो एक सुसाइडल पाथ पे चली हुई है। जब तक पीपल्स पार्टी अपने आप को चेंज नहीं करती और नहीं समझती कि हमने सिंध में और कराची सिंध का हिस्सा है, जब तक हमने यहां तब्दीली नहीं लानी, उसके पुराने एटीट्यूड्स रहे, तो हम ये कहें कि कराची तो बड़ा एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस बन जाए और अंदरूनी सिंध जो है बिल्कुल वो पुराना वगैरह शाही के नीचे हो, तो ऐसा नामुमकिन होगा। ये तीनों एक्टर्स जो हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई एंड द एमक्यूएम, इनको थोड़ा सा करना चाहिए। सिंध में, कराची में बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, सब अकोमोडेट हो सकते हैं।
ठीक है, वसीम अख्तर साहब ये तीन पार्टियां अपनी जगह पे हैं, यहाँ से ये तीनों पार्टियां अपनी जगह पे हैं। आप नहीं देखते कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और खुदा ना खास्ता कराची के हालात ठीक नहीं होते और ये तीनों पार्टियों में तो मुफाहमत नहीं होती, आप क्या देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल होगा उस शहर से जहाँ से 70% रेवेन्यू आता है? आपके ख्याल में क्या फेडरल गवर्नमेंट में आसानी से चला सकेंगे अगर खुदा ना खास्ता कराची में अमन नहीं होता? शाम साहब आपका सवाल अयाज मीर साहब से है? जी अयाज साहब के साथ। जी जी नहीं मुझे पता अच्छा, वो शायद वहाँ पे कोई डिस्कनेक्शन है, अब इनको आवाज आपकी नहीं गई है, तो वसीम अख्तर साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए नादिया, जो डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग एमक्यूएम, मैं एग्री करता हूँ, हालात जो माजी में खराब हुए, जाहिर है हम भी गवर्नमेंट में थे, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और अब आने वाली जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की सिंध में, अगर कराची के हालात खराब खुदा न खास्ता रहते हैं, जो कि नजर आ रहा है, हम 2 हफ्ते से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं हाई कोर्ट के सामने। हमारे 2 दिन में 5 कारकुनान पार्टी के शहीद किए जा चुके हैं, अगवा किया जा रहा है और फिर उसके बाद उनको टॉर्चर करके उनकी लाशें मिल रही हैं। तो अगर ये सिलसिला जारी रहे कि कौन कर रहा है? केयर टेकर तो नहीं कर सकते ना, केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं कर क्या रहा है, आप कौन कर रहा है? आप भी जानते हो हर चीज को। एक लड़का नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा है, वहां से सादा एक गाड़ी आती है विदाउट नंबर प्लेट, सादा ये व्हाइट शलवार उठा के ले जा रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान में होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं वो ये? अब ये अब क्यों कर रहे हैं? मैं वहीं आ रहा हूँ ना। देखिए ये सियासी तौर पर ऐसे फैसले आपसे करवाने इतना आसान होता है एमक्यूएम के गोद में हर चीज डाल देना कि एमक्यूएम ही कर रही है सब कुछ। मेरी सोच ये है कि जो बड़ी जमातें हैं, बड़े लीडरान हैं, उनको मेच्योरिटी का करना चाहिए अपना क्या कहते हैं मुजाहरा। लेकिन आप ये बता नहीं रहे हैं कि आप वो कोई वजह क्या कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे। वो मैं क्यों, मैं मिसाल दूंगा एक सबको पता ही नवाज शरीफ साहब के सामने माजी में एक रिपोर्ट पेश की गई कि ISI की रिपोर्ट आई है कि हकीम सईद को एमक्यूएम ने मर्डर कर दिया और गवर्नमेंट खत्म हो गई, गवर्नर लग गया, ऐसे ही था। तो लीडरान को भी सोचना चाहिए। मैं इनके यहां भी जाऊंगा कि एक हादसा कराची में हुआ और उसको एमक्यूएम पे डाल दिया गया फौरन। अच्छा, तो अगर लीडरान मेच्योरिटी का मुजाहरा करें कि नहीं भाई ऐसा नहीं, इसके अंदर जाके ग्राउंड तैयार किया जा रहा है एमक्यूएम के खिलाफ, खत्म कर दीजिए। हाँ, आपसे बंदों को उठा कौन रहा है ये नहीं बता रहे हैं। अगर आने वाली गवर्नमेंट के लिए कोई तोहफा तैयार किया जा रहा है कि हमें आप मारते रहोगे, हम एहतजाज करते रहेंगे, हम एहतजाज तो कर रहे हैं ना, हाई कोर्ट के सामने भी कर रहे हैं, हर फोरम पे कर रहे हैं, हम कल नेशनल असेंबली में भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोग अगवा हो रहे हैं। अब 9 लड़के आज भी अगवा हुए हैं हमारे, तो मैं किसके जिम्मे डालूं? आज के टेकर जो मैं उसके जिम्मे डाल रहा हूं। ठीक है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी, ये सिलसिला अगर जारी रहा और मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया गया दूसरे लीडरान की तरफ से, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, अगर ये जो अगवा कर रहे हैं, ये जो वायलेंस चला है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे का नाम ले रहे हैं खुल्लम खुल्ला। मेरे लड़के अगवा हो रहे हैं, मेरे लड़के मारे जा रहे हैं पार्टी के, तो ये तो हुकूमत वक्त का काम है कि जिम्मा है, लेकिन कर कौन रहा? जिम्मा तो हुकूमत वक्त है, बिल्कुल है। पुलिस को रेंजर्स आदमी उठा के पुलिस के हवाले करती है, पुलिस उसका मेडिकल कराती है, मेडिकल में डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि हमारे पास जब ये लड़का लाया गया तो इसके ड्रिल हुई थी टांगे, मैं किधर जाऊं? आप बताएं मुझे कौन है ये? तो जुल्म है, लेकिन आप अगर ऐसा होगा तो मैं फिर जिम्मेदारी बड़े लीडरान पे डाल रहा हूं कि 65 साल में सारे लीडरों ने सब कुछ देखा है, चाहे पंजाब हो चाहे वो सिंध हो, जो साजिशें की जाती रही हैं, जो साजिशें नजर आ रही हैं मुझे आगे आने वाले वक्त में, तो ये लीडरों को मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि पास्ट एक्सपीरियंस से क्या सबक सीखा उन्होंने, हम पे डाल के आप निकल जाओगे अलग या इनके में ये किया। फिर अली दीदी से जरा से बात करूंगी। अयाज मीर साहब, आपने तमाम ये गुफ्तगू सुनी है इनकी, वसीम अख्तर साहब की, ये हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और ये एमक्यूएम का जो ये मेजर कंसर्न है, इससे आपको क्या लग रहा है, क्या है ये? देखिए, ये जो है ऐसी चीजें बिल्कुल हर चीज से एग्जाम्पल्स और इंस्टेंसेस पकड़ सकते हैं, और वो हम अगर साइट करना लग पड़े तो हम शाम तक यहाँ बैठे रह सकते हैं। लेकिन अगर आज पीपल्स पार्टी ये कहे कि उसका अमन कमेटी के साथ लियारी की कोई ताल्लुक नहीं है,
और अमन कमेटी जो लियारी की है वो वायलेंट एक्ट्स में मुलव्वस नहीं है। अगर एमक्यूएम कहे कि हमारा वायलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है और हमारा माजी जो है बिल्कुल साफ है और हर एक कोई ऐसे प्रोटेस्ट करे, फिर तो बात बन नहीं सकती। माजी जो है सिंध का, कराची का अच्छा नहीं रहा। हमने बहुत कुछ कराची में देखा है, उसमें कोई भी बरीउ जिम्मा नहीं है। और जो सिक्योरिटी एजेंसी पे जो वसीम भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसलिए लाजम है, जरूरत और बढ़ जाती है कि पॉलिटिकल फोर्सेस यूनाइट हो। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको ज्यादा स्पेस मिलती है वो चीजें करने के जिसके वो बड़े माहिर हैं, जब पॉलिटिकल फोर्सेस डिवाइडेड हो। कराची में तो ये टर्फ वॉर पॉलिटिकल पार्टीज की और पॉलिटिकल फोर्सेस की खत्म नहीं हो रही। लियारी में जो है एमक्यूएम वहां के इलेक्शन बॉयकॉट करती है क्योंकि वहां का माहौल और है। यहां पे एमक्यूएम के खिलाफ इल्जाम होता है कि आपने इलेक्शन ऐसे कराए, एक हल्के में दोबारा कई पोलिंग स्टेशन में होते हैं। तो इस चीज से निकलने की बात है। हम एक दूसरे पे इल्जाम पॉलिटिकल फोर्सेस पे कर सकते हैं और वो रात गए तक, कल सुबह तक हम कर सकते हैं कि ये ज्यादती हुई, फलाना ज्यादती हुई, इतने मारे गए। बाबर बली जो है रिपोर्टर, उसको पता नहीं किसने मारा, उसके गवाह जो थे वो कहां चले गए। ये तो माजी बिल्कुल, लेकिन इससे निकलने की अब जरूरत है। ठीक है, जरी आप इससे कुछ क्योंकि पहले आपने भी बात की थी, वसीम भाई ने भी किया। पहले तो ये 10 जगह से आपको ब्लॉगिंग हो रही है, आपने सामने कुछ भी नहीं है, बस मेरा फोन है। कम्युनिकेशन की दुनिया कम्युनिकेशन की यहाँ पे कम मैं खाली एक बात देखें, आप वकील है ना, जो अल्ताफ हुसैन भाई की तकरीर थी ना 12 मई की, वो अब बाद में चलो रिट्रैक्ट हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी वजह से इल्जाम उन पर लग गया। क्योंकि जिन्होंने कहा था, चाहे गुस्से में कहा हो चाहे जैसे भी कहा, उन्होंने एक बात कर दी। जल्दी लगाया, एक मेरी बात सुन लेना। अभी मेरी इनकी लड़ाई हो जाती है, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मेरी इनकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। ये तो मेरे हर जैसे रहा हूँ कि इनसे मेरी सोशली में दोस्ती है, तो मैंने उनको पहले भी कहा कि इनको ना बुलाया करें, मैं लड़ ही नहीं सकता। और ये भी आपसे कहें कि ऐसे को बुलाएं जो हम लड़ाई तो कर सकें ताकि आपके शो की रेटिंग बढ़े। अब इनके साथ मेरी लड़ाई अगर हो जाती है और मैं खुद इनको थ्रेट कर दूं या ये मुझे थ्रेट कर दें और खुदा ना खासा तीसरा आदमी आगे हमें भड़का जाए, तो दुनिया तो उसको बोलेगी ना, एक मेरी बात सुना, दुनिया तो वो बोलेगी जिसने थ्रेट किया है, तो इल्जाम तो उसी पे चल रहा है। इसलिए अगर वो हुआ था ठीक है ना, अगर आपने आगे मुंह फोड़ दे, मैं आगे शैला की बात पे एक बात करना चाहता हूँ। वो चली गई नहीं, वो मेरे ख्याल में मेरा ख्वाब है और हमारे सारे डिफरेंसेस के साथ मेरे ख्याल में ये ख्वाब ये भी शेयर करते हैं, इनकी जमात भी शेयर करती है और ये पर्सनली भी शेयर करते हैं कि कराची को अमन का गहवारा बनाना चाहिए। उसके लिए मिल बैठने हैं या सोचना है कि जो 12 महीने कोई बात है कि सारे कराची के बारे में सबसे पॉजिटिव बात अयाज अमीर साहब जो कराची में नहीं रहते उन्होंने की है, बहुत सी बात है। ये बात यही है ना, अभी हैदर जो मैं एक चीज करता हूँ, देखिए अभी मैं आई वॉन्ट टू कंक्लूड, देखिए अभी मेरे पास जो ट्वीट आना शुरू हो गए ना, हमारे भी कुछ फॉलोअर्स जज्बाती हैं, वो आगे ट्वीट लिख रहे हैं। मैंने हैदर को बताया भी कि देखें जी एमक्यूएम के साथ बैठ के ये कैसे हैदर के घर लड़ाई होनी चाहिए, हर वक्त लड़ाई का वक्त नहीं होता। अगर हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, वी कैन हैव अ बट एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ चलेगा। ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। शाम साहब, थैंक यू। रियाज मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जब भी आपका भी, आप तो खैर आपका शुक्रिया अदा करने की जरूरत है, लेकिन मैं अयाज अमीर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। ये कराची पे उन्होंने बहुत अच्छा तबसरा किया और अकल के नाखून लेने चाहिए कराची की सियासी फोर्सेस को और कराची वालों को, और वो आगे के कराची में नहीं रहते, वो समझते हैं हमारी पाकिस्तान की बड़ी जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि कराची को कैसे हैंडल करें। और वसीम साहब, नाजिया ये भी समझना चाहिए वसीम साहब को कि उन्होंने, वो चाहते हैं एमक्यूएम को बेहतर देखना। ब्रेकिंग न्यूज है वो आपको शेयर करते रहेंगे। हेडलाइंस वक्त हुआ है। फिलहाल जो CNBC की ट्रांसमिशन है, इसके फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज स्टूडियोज की तरफ।